Hello everyone. Today I am going to start chapter 7 Subhashit Madhubindava. Okay, Subhashit means speak good and Madhubindava it means treasure of maxims जिसको बोल सकते हैं. Subhashit Madhu it means maxims and Bindava it means treasure. So you can say the translation of chapter is treasure of maxims, right? Here introduction is there in Gujarati language, but you have English medium textbook, then English introduction will be done in English in your textbook. Okay, so you can say here Sanskrit literature contains inexhaustible, okay, treasure of maxims, right? What I told, inexhaustible treasure, right? So we find the use of such maxim in epics, sometimes as metaphor, sometimes as detached stanzas with complete meaning. There is element of thinking, sometimes worldly, special, metaphorical use of seriousness of meaning in these maxims. In the first maxim, students, here in your chapter, in first maxim, our attention is drawn towards eternal truth, right? Not internal, eternal, right? In first maxim, our attention is drawn towards eternal truth. Students, in the second maxim, suggest the human being to be to good to speak good. This in this book, third maxims indicates the specially of three things, while in fourth there is specially of gentlemen, right? And the fifth one is the form of dialogue which contains question and answers between Parvati and Lord Shiva. The sixth maxims is a moral preaching which indicates that bigness and heaviness are not the reason for greatness. The small or micro elements have their unique importance. So, you have to learn in two form of collection of verses given in this lesson. You should enhance their wealth of through by imbibing the thoughts expressed in this poem. On the other hand, they have to enrich vocabulary by properly understanding the words used in these verses. So, means seeing the essence of maxims, the face of grape with the sugar cube turned into stone and being frightened. Nectar accepted to heaven. राइट. तो यहाँ पर ये जो सुभाषित दे रखे हैं वो देख के जो मीन्स आई हैव टोल्ड हियर ग्रेप्स मीन्स जो ग्रेप्स होती है उसका मुंह शर्मा गया और जो शुगर है वो पत्थर की हो गई है, क्योंकि अमृत जब इस स्वर्ग पर आता है तो धरती भयभीत हो जाती है, क्योंकि सदा ऐसा बोला जाता है कि सत्यमेव जयते. हमेशा जहर जो पॉइजन होता है वो ज़्यादा कहीं पर रुकता नहीं है. सुभाषित मधुबिंदवा. So first shlok I am starting. Here you can see in your textbook also. यद शक्यम न तत् शक्यम, यद शक्यम शक्यमेवत. ओके. अशक्यम, यहाँ पर एक शब्द दिया है यद अशक्यम. शक्यम मीन्स काट पॉसिबल and ashakyam it means which is not possible. Okay, here shakyam it means possible and ashakyam it means
नॉट पॉसिबल। शक्तम, पहले यहाँ पर सिर्फ आप ये देखिए शक्यम, शक्यम, इट मीन्स पॉसिबल एंड विच इज नॉट पॉसिबल. Then here Shaktam. Shaktam it means I can write here, so I will write cart. Okay. Yati it means goes. Okay. Here now. You can see here now. Now it means boat. Right. सीधा सा मीनिंग है यहाँ पर कि विच इज पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल एंड विच इज पॉसिबल इज पॉसिबल. फर्स्ट लाइन का मीनिंग देखिए, यद शक्यम न अशक्यम, यद अशक्यम तत् शक्यम. इट मीन्स जो पॉसिबल नहीं है वो, जो असंभव है वो संभव नहीं हो सकता, यानी कि जो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है. पॉसिबल वही हो सकता है जो पॉसिबल है. कैसे? तो स्थल इट मीन्स लैंड. ओके, यहाँ पर स्थल का मतलब लैंड है और उदक यानी कि वाटर. ओके, तो पानी, गाड़ी जो होती है ना, गाड़ी जो होती है, जो पानी की जो गाड़ी होती है, जो नाव मीन्स गाड़ी होती है, वो पानी पर नहीं चलती है, उसके लिए स्थल ही चाहिए यानी कि रोड ही चाहिए. लेकिन नाव जो होती है वो लैंड पर नहीं चल सकती, उसके लिए वाटर चाहिए. यानी कि इस लाइफ में जो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल है ही नहीं. पॉसिबल वही चीज़ है जो हम कर सकते हैं. यानी कि ये पॉसिबल और इम्पॉसिबल वो नहीं है कि आपके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल है तो उसको हम पॉसिबल बना सकते हैं. यहाँ पे बात चीज़ों की है कि जो चीज़ जहाँ पर यूज़ होती है उसे हम वहीं पर यूज़ कर सकते हैं. राइट. आप अगर पानी को ग्राइंड करेंगे तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, वो सिर्फ पानी का पानी ही रहेगा. लेकिन अगर आप किसी फ्रूट को ग्राइंड करेंगे, फ्रूट को मिक्सचर में ग्राइंड करेंगे तो उसमें से जूस निकलेगा, क्योंकि उसमें से निकल सकता है. लेकिन पानी में से तो कुछ निकल ही नहीं सकता है. तो ये वाली बात यहाँ पर है कि जो पॉसिबल है ही नहीं वो पॉसिबल नहीं हो सकता है. पॉसिबल वही है जो पॉसिबल हो सकता है. तो उसका नीचे एग्जाम्पल दिया है कि न उदके शकटम याति, यानी कि जो गाड़ी है वो पानी में नहीं चल सकती, उसके लिए स्थल यानी कि लैंड चाहिए. वैसे ही नौ मीन्स बोट, तो जो बोट होती है वो उसके लिए पानी चाहिए, वो लैंड पर नहीं चल सकता. राइट. तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि विच इज़ इम्पॉसिबल इज़ नॉट पॉसिबल. राइट. एंड विच इज़ पॉसिबल इज पॉसिबल. फर्स्ट लाइन यद शक्यम न तत् शक्यम, यद शक्यम शक्यमेवेत. उसका मतलब ये होता है कि विच इज़ इम्पॉसिबल इज़ नॉट पॉसिबल एंड विच इज़ पॉसिबल इज़ पॉसिबल. देन नेक्स्ट लाइन देखिए, न उदके शटकम याति शकटम याति न च नौ गच्छति स्थले. इट मीन्स अ कार्ट कैन नॉट गो इन टू वाटर एंड अ बोट कैन नॉट मूव ऑन द अर्थ. तो जिस तरह से एक कार वाटर में नहीं चल सकता और एक बोट लैंड पर या अर्थ पर नहीं चल सकती, वैसे ही जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो पॉसिबल है वही पॉसिबल है. इसलिए हमें लाइफ में वैसी ही चीज़ों को या वैसे ही चीज़ों को यूज़ करके काम करना चाहिए जिससे कोई काम पॉसिबल हो सकता है. राइट. सो फर्स्ट लुक, आई होप यू अंडरस्टूड. देन सेकेंड, वचस्तत्र प्रयोक्तव्यम यत्र उक्तम लभते फलम, स्थायी भवति च अंत्यम राग शुक्लपटे यथा. राइट. वचस्तत्र, वचस, वच यानी स्पीक, बोलना. और यहाँ पर वचस्तत्र, वच का मतलब यहाँ पर होता है क्लोथ भी होता है. नहीं, वच यानी स्पीकिंग और प्रयोक्तव्यम इट मीन्स शुड बी यूज्ड. यत्र यानी वेर, लभते मीन्स गेट, फलम मीन्स रिजल्ट, स्थाई मीन्स परमानेंटली, मीन्स which can stay permanently. Okay. Then
रागा मीन्स कलर और शुक्लपटे, शुक्लपटे मीन्स ऑन वाइट क्लोथ, पट यानी क्लोथ और शुक्लपटे यानी वाइट क्लोथ। ओके, वचस्तत्र प्रयोक्तव्य यानी कि हमें ऐसा बोलना चाहिए। ओके, हमें जो बोलना है वो ऐसा बोलना चाहिए कि यत्र उक्त यानी जो बोला गया है, हमें ऐसा बोलना चाहिए कि जो बोला जाए वो लभते फलम, लभते फलम यानी कि उसके बोलने का जो फल प्राप्त हो वहीं पर हमें बोलना चाहिए। वचस्तत्र प्रयोक्तव्य, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए जहाँ पर हमें कुछ फल प्राप्त हो, यानी कि कुछ हमें रिजल्ट मिले। आप किसी को कुछ बोलते हैं तो वो कभी कभी ऐसा लगता है कि भैंस के आगे भागवत सुनाई या फिर पत्थर के आगे सिर फोड़ा, यानी कि उसको कुछ असर ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर यही बताया गया कि वचन, हमारे वचन वहीं पर, तत्र यानी वहीं पर, प्रयोक्तव्य यानी प्रयोग करने चाहिए, या शुड बी यूज्ड जहाँ पर, यत्र यानी जहाँ पर, उत्तम यानी बोला हुआ, लभते फलम, लभते यानी गेट प्राप्त होना, और फलम यानी उसका फल या रिजल्ट प्राप्त हो, यानी कि बोलना, उचित बोलना या बोलना वहीं पर चाहिए जहाँ पर आपके बोले जाने का फल प्राप्त हो, यानी कि आपको उसका कोई रिजल्ट मिले। अगर आपने किसी को कुछ ओपिनियन दिया है तो उसको, सामने वाले को ओपिनियन सुनना ही नहीं है तो वो यूज़लेस हो जाएगा आपका बोलना, राइट। आप उसको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन उसको कोई पड़ी नहीं है, जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या उसको आपकी बात को इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो आपका वो बोलना व्यर्थ जाता है। लेकिन अगर आप कहीं पर कुछ एडवाइस दे रहे हैं और उसको वेटेज दिया जा रहा है या उसको सुना जा रहा है या फिर उसकी इम्पोर्टेंस है, आपने जो वर्ड्स बोले हैं वो वैल्यू करता है सामने वाला, तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमने कुछ एडवाइस दी है तो वो काम की है, अदरवाइज़ फालतू की एडवाइस हमको नहीं देनी है, ये मेंटालिटी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर यही बोला है कि वचस्तत्र, वच यानी बोलना, जो हमारे वचन है, जो हमारे वर्ड्स है, तत्र मीन्स वेयर, प्रयुक्तव्य, प्रयुक्तव्य इट मीन्स शुड बी यूज्ड, तत्र यानी देयर, उक्तम यानी और मीन्स और वर्ड्स और स्पीच, लभते मीन्स गेटिंग, और फलम मीन्स रिजल्ट और मीनिंग, वॉट एवर यू कैन से। ओके, स्थाई भवती, स्थाई मीन्स फर्स्ट लाइन का मीनिंग शायद आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्थाई भवती, स्थाई इट मीन्स इन that which can stay permanently, स्थाई भवती, स्थाई means permanently, and भवती it means which can stay permanently। च अत्यंत, अत्यंत means अत्यंत, you can say many। okay, then रागः, रागः it means color। एक्चुअली यहाँ पर अत्यंत, ये जो अंत्य शब्द दिया है उसका मतलब था रेड कलर, सॉरी, रेड कलर। रागः मीन्स कलर और अंत्य इट मीन्स रेड कलर, और शुक्ल मीन्स वाइट एंड पटे मीन्स क्लोथ, वाइट क्लोथ। यानी कि यहाँ पर ये है कि जब आप वाइट कलर का कपड़ा होता है तो उस पर जो रेड कलर का अगर रंग लग जाए तो वो परमानेंटली रह जाता है। अगर ब्लैक कलर पे कोई आपने अलग से कलर डाला है, जैसे ब्लैक कलर, इसको मैं आपको एग्जांपल से ऐसे समझाती हूँ कि ब्लैक कलर का कोई कपड़ा है या कोई डार्क कलर का कपड़ा है, उस पर अगर आपने रेड कलर लगाया है तो वो कलर दिखेगा नहीं, वो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। लेकिन वाइट कलर का कपड़ा है, उसमें आपने लाल रंग लगा दिया तो वो परमानेंट रह जाएगा। यानी कि यहाँ पर यह बोला गया कि हमें किसी को ऐसे वचन बोलने चाहिए जो उसके दिमाग में उतर जाए और उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके, ना कि वो वाइट कपड़े पे जैसे रेड कलर का धब्बा लगा है वैसा कि उस पर एक रह जाए कि नहीं, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, वो मेरे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, आज मुझे ये ऐसा सुना के गया। तो यहाँ पर इस कलर के और कपड़े से ये कंपेयर किया है अपने स्पीच, अपनी वाणी को, राइट। सो यू कैन से हियर as red color stay permanently on white cloth, in the same way speech should be used where its meaning is fulfilled, right। सो इसका मतलब श्लोक का जो होता है वो यही होता है कि जिस तरह से सफ़ेद कपड़े पर लाल रंग स्थायी हो जाता है, उसी तरह से जहाँ बोलने का फल प्राप्त हो वहाँ पर ही हमें हमारी वाणी
बोलनी चाहिए. सो अगेन आई एम टेलिंग, एज रेड कलर stay permanently on white cloth. In the same way, speech should be used where its meaning is fulfilled. Now, okay. Now, third श्लोक. एक्चुअली पहले मैं बीच में आपको ये बोलना चाहूँगी कि पहले जब हम मेरे जो वीडियोस आते थे उसमें वो शायद 40 मिनट्स 45 मिनट्स और समटाइम 49 मिनट्स के भी होते थे. बिकॉज एक लेक्चर में, जैसे क्लास में आपका 1 आवर का लेक्चर होता है, तो उसमें हम एक्सरसाइज, उसका ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग, उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ पढ़ लेते थे. तो उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने ये वीडियोस बनाए थे. बट नाउ वेरी शॉर्ट कोर्स हैज़ रिमेनिंग, राइट. बहुत थोड़ा सा कोर्स बचा है जो कंप्लीट करना है. तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सर्व करूँगी, थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो भेजूँगी ताकि आपके दिसंबर तक आप उसको अच्छे से पढ़ सकें. बिकॉज अगर अभी नवंबर में आपका कोर्स ख़त्म हो गया या कंप्लीट हो गया तो आगे के लेक्चर्स आपके वो ब्लैंक रहेंगे, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा. तो समटाइम्स आपके जो वीडियोज़ हैं वो रिपीटेडली आएंगे, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को आप फिर से देख लीजिएगा. और समटाइम्स मैं आपको न्यू फ्रेश वीडियोस बना के भेजूँगी, बट वो बहुत ज़्यादा 45 या 50 मिनट्स के ऐसे नहीं होंगे. वो 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, समटाइम्स मे बी 15 मिनट्स. तो इतने शॉर्ट पीरियड आपके बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका कोर्स ख़त्म होने आया है. क्योंकि मैंने क्लास में जिस तरह से लेक्चर लेते थे उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन, ग्लोसरी सब कुछ एक पीरियड में कराया था. तो अब मैं उसको थोड़ा थोड़ा, इसलिए आज हम 3 श्लोक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड में हम अगेन 3 श्लोक्स पढ़ेंगे. तो इस तरह से हम 3 पीरियड में हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ताकि 2 पार्ट्स में मैं आपको 2 वीडियोस भेजूँगी एक्सप्लेनेशन के, इस चैप्टर को हाफ हाफ करके. एंड थर्ड पार्ट में मैं उसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी और उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दूँगी. आई होप आप उसको आप लिख रहे होंगे, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आएंगे. अभी तक तो आपने क्या किया, उसको लिखा ही नहीं था. इट्स ओके अगर आपने नहीं भी लिखा होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए. अगर आपके पास डाइजेस्ट है या आपके पास उसकी कोई आंसर की है तो आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा. अदरवाइज़ अगर आपके पास आंसर की अवेलेबल नहीं है या डाइजेस्ट अवेलेबल नहीं है या कुछ भी आपके पास ऐसा मटेरियल, लर्निंग मटेरियल जो एक्स्ट्रा आपके पास अवेलेबल नहीं है, सो यू हैव टू राइट. इवन यू शुड राइट. बिकॉज अगर एग्ज़ाम आती है तो आपको एग्ज़ाम में फिर डिफ़िकल्टीज़ ना हो कि इसका आंसर क्या है, तो इसके लिए आपको ये लिखना चाहिए. नाउ थर्ड श्लोक. वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या लोकोत्तरम परिमलश्च कुरंगनाभे तैलस्य बिंदुरेव वाणी ही दुर्निवारम एतत्रयम प्रसरति स्वयमेव भूमि. ये बहुत ही अच्छा श्लोक है. वार्ता इट मीन्स इन्फॉर्मेशन या न्यूज़. आप वार्ता को कहानी, जैसे यहाँ पे मैंने सुना है कि वार्ता मीन्स स्टोरी. नॉट वार्ता मीन्स स्टोरी. इट इज़ नॉट गुजराती वर्ड, इट इज़ a संस्कृत वर्ड वार्ता. So varta means news, or you can say information, right? The cha means and means and wala and. Or kautukvati. Kautukvati it means creating curiosity. Okay, creating curiosity जिसको बोलते हैं कौतुकवती. Okay, then विमला. विमला का मतलब होता है प्योर. विद्या इट मीन्स नॉलेज और एजुकेशन. देन लोकोत्तरम. आप पहले उसका वर्ड बैंक समझ लीजिए ताकि आपको उसको श्लोक समझने में ईजी हो. लोकोत्तरम. लोकोत्तरम का मीनिंग होता है बेटर देन द वर्ड. वर्ड मीन्स संसार. ओके. परिमला. परिमला का मतलब होता है फ्रेगनेंस, खुशबू. कुरंग नाभे. कुरंग का मतलब होता है डियर, हिरण. ओके. एंड नाभे इट मीन्स फ्रॉम द नेवल, जो उसकी नेवल होती है हिरण की, वो. तेलस्य मीन्स ऑफ ऑयल. बिंदु इट मीन्स ड्रॉप. इव मीन्स ओनली. वारिणी इट मीन्स इनटू वाटर. वारी मीन्स
वाटर इनटू द वाटर, ऐसा। दुर्निवारम, इट मीन्स विच कैन बी स्टॉप्ड विथ डिफिकल्टीज, ओके। त्रय मीन्स थ्री, प्रसरति इट मीन्स स्प्रेड, भूमो मीन्स ऑन लैंड, स्वयं मीन्स बाय ओन। सो यहाँ पर इस श्लोक का मीनिंग ये निकलता है कि वार्ता च कौतुकवती, वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या, लोकोत्तरम परिमलश्च कुरंगनाभि। यानी कि कुतूहल, कौतुकवती यानी कि जब हमें कुछ जानने की इच्छा होती है या जब हमारे में कोई क्यूरोसिटी होती है, तो वैसे जो न्यूज़ होती है, वो समाचार जो होते हैं, जो वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो पवित्र विद्या और हिरण की नाभि में रहा हुआ जो सुगंध है, उसको रोकने में बहुत मुश्किल है। यानी कि हमारी क्यूरोसिटी से, अगर हमारे में जैसे कौतुकवती यानी क्यूरोसिटी, जब हमारे अंदर कोई क्यूरोसिटी है तो हम वार्ता यानी उस नॉलेज को प्राप्त करके रहेंगे। जब हमारे में कोई उत्साह ही नहीं है, जब हमारे में कोई कौतूहल ही नहीं है, जानने की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, तो वो न्यूज़ हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम पा नहीं सकते। विमला च विद्या, पवित्र विद्या, जिसको विद्या प्राप्त करनी है उसको भी कोई नहीं रोक सकता है, राइट। लोकोत्तरम परिमलश्च, परिमल का मतलब मैंने यहाँ पे बताया था फ्रेगनेंस, ओके। परिमल का मतलब मैंने क्या बताया था, फ्रेगनेंस। एंड लोकोत्तरम इट मीन्स बेटर देन द वर्ड। इस संसार में फ्रेगनेंस यानी खुशबू, कुरंग नाभे, कुरंग, कुरंग का मतलब मैंने बताया था हिरण, और नाभे यानी नाभि। इस संसार में हिरण की नाभि में जो खुशबू होती है, जो फ्रेगनेंस होती है, उसको जिस तरह से रोकना मुश्किल है, उसको आप रोक सकते हैं। आपने अगर परफ्यूम लगाया है, सपोज़ आपने परफ्यूम लगाया है, और अगर किसी को उस परफ्यूम से एलर्जी है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये फ्रेगनेंस मुझे नहीं पसंद है, तुम यहाँ से चले जाओ, या फिर तुम अपना परफ्यूम का जो फ्रेगनेंस है वो चेंज कर लो, राइट। वो पॉसिबल है। लेकिन हिरण की नाभि में खुद वो खुशबू है, वो इतनी स्प्रेड होती है, इतनी महकती है कि आप उसको चाह कर भी नहीं रोक सकते। किस तरह से नहीं रोक सकते, वैसे ही जब वार्ता च कौतुकवती, जहाँ पर क्यूरियोसिटी है, वहाँ पर आप किसी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। विमला च विद्या, जहाँ पर प्योर एजुकेशन है, जहाँ पर जिसको एजुकेशन प्राप्त करना ही है, उसको आप नहीं रोक पाओगे। आप कैसे रोकोगे, क्योंकि उसमें नॉलेज है और उसका नॉलेज उसके काम में दिखता है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। जिसको क्यूरियोसिटी है वो इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ प्राप्त करके रहेगा। वैसे ही कैसे, तो उसी तरह से जैसे इस संसार में हिरण की नाभि में ये जो हमारी फ्रेगनेंस होती है, जो खुशबू होती है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। तो इस सेंटेंस का मीनिंग आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि न्यूज़ विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, नॉलेज, प्योर नॉलेज या क्योर नॉलेज, एंड द फ्रेगनेंस फ्रॉम द नेवल ऑफ द डियर बेटर देन द वर्ड कैन बी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। तेलस्य बिंदुरेव वारिणी, तेलस्य का मतलब मैंने बताया था ऑयल, ऑफ ऑयल। बिंदुरेव इट मीन्स ड्रॉप, वारिणी इट मीन्स इनटू द वाटर, दुर्निवारम इट मीन्स डिफिकल्टी। एतत्रयम इट मीन्स ऑल दिस थ्री थिंग्स, प्रसरति इट मीन्स स्प्रेड, स्वयमेव इट मीन्स बाय सेल्फ, और भूमो इट मीन्स ऑन द लैंड। यानी कि ये तीनों चीज़ें जल में पड़े हुए उसके जो ड्रॉप होते हैं, राइट, तेल के जो ड्रॉप होते हैं, पानी में पड़े हुए तेल के ड्रॉप की तरह धरती पर खुद फैलते हैं। ये तीनों कौन, तो एक क्यूरियोसिटी, एक न्यूज़ जानने की, इन्फॉर्मेशन जानने की क्यूरियोसिटी, एक नॉलेज, और एक ये डियर के जो नेवल में जो फ्रेगनेंस है वो, ये तीनों चीज़ें कैसे स्प्रेड होती है, तो जिस तरह से पानी में पड़ा हुआ जो ऑयल का ड्रॉप होता है वो धरती पर खुद फैला जाता है। यानी कि पानी में अगर ऑयल गिर गया है तो वो ऑयल अलग से दिख जाता है और वो
फैल जाता है, राइट। उसी तरह से ये तीनों चीज़ें संसार में अपने आप ही फैल जाती है। उसको किसी को रोकने की या किसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही फैल जाता है। सो दीज थ्री themselves spread on the earth just a drop of oil spreads in water। जिस तरह से पानी में ऑयल की ड्रॉप फैल जाती है, आप देखना कि आप साइंस के स्टूडेंट्स से आपको सबको पता होगा कि पानी में जैसे आप ऑयल का एक ड्रॉप डालते हैं तो वो ऑयल पूरे पानी में फैल जाता है। ऊपर उसकी जो बॉटम होता है वहाँ पर उसका जो टॉप, सॉरी बॉटम नहीं, उसका जो टॉप होता है, उसका जो सतह होती है उस पर वो फैल जाता है, राइट, ऑयल। उसी तरह से ये तीनों चीज़ें, कौन सी तीनों चीज़ें, तो जब इंसान को जो क्यूरियोसिटी होती है किसी इन्फॉर्मेशन जानने की, वो क्योर नॉलेज और फ्रेगनेंस फ्रॉम द नेवल ऑफ द डियर, तो ये तीनों चीज़ें जैसे अपने आप फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? जैसे पानी में ऑयल का ड्रॉप डालने से वो ऑयल फैल जाता है, वैसे ही ये तीनों चीज़ें अपने आप फैल जाती है। सो द ट्रांसलेशन इज, अगेन आई एम टेलिंग द होल श्लोक, न्यूज़ विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, pure knowledge and the fragrance from the navel of the deer, better than the word can be difficult to stop. These three themselves spread on the earth just as a drop of oil spreads in water. ओके, सो आई होप आपको ये तीनों श्लोक समझ में आए होंगे। सो अर्लियर आई हैव टोल्ड कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो चलता रहे, आपके पीरियड्स स्किप ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सो इन नेक्स्ट पीरियड I will teach 4th, 5th and 6th shlok, and then next period exercise will be done. Okay, so I hope you will better understand. Thank you very much, students.